So this is our first stop, my first stop actually, because I'm doing a solo trip from Surrey all the way to Kelowna, and this is Asha Mahakaleshwar temple, and this was basically one of my top in my list. This is in Hope. मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी थी, so I personally wanted to come here and explore this. As a Muslim as well, I respect all religions and I feel like कि मुझे ऐसी historical जगहें ऐसी जगहें देखने का बहुत ज़्यादा शौक है. So I thought I'm gonna come here and explore this. It's actually a really good place. I've seen a lot of people coming here and offering their, taking blessings and offering prayers and everything. So that's actually very good. चलते हैं अपनी next stop की तरफ. So I was going back and the priest called me in and we had a little talk, which was actually really awesome. This is the great thing about Canada or places like this कि हम लोग खुल के एक दूसरे से बात कर सकते हैं. यहाँ पे कोई discrimination नहीं है, कोई एक दूसरे के साथ hate नहीं है. So it was a very nice experience and he told me if you wanted a picture or anything, but I was like I'm okay. So let's go forward. जो बेस्ट बात है ना BC की when you're doing a road trip is कि आपको इतनी beautiful spots देखने को मिलते हैं. This is the reason it's called beautiful BC. It's such a scenic spot and drive भी यहाँ पे बड़ी मजे की होती है. So let's go and explore the next spot. सिर्फ 1.5 घंटे रह गए until I'm gonna reach my hotel. रास्ते में मैं सिर्फ मेरिट पे रुकी थी just to grab coffee from Tim Hortons. So मैंने drive thru से coffee पिक की थी because I'm super tired and I just wanna reach the location right now because मैं सुबह से drive कर रही हूँ and as such तो कोई इतनी ज़्यादा मुझे जगहें दिखी नहीं बीच में because I think so जो route मैंने choose किया था वहाँ पे इतने ज़्यादा scenic spots आए नहीं. Lakes आ रही थी काफ़ी ज़्यादा but मेरे अंदर अभी बहुत ज़्यादा हिम्मत थी नहीं कि मैं रुकूँ. But let's see कि कितनी देर और लगती है. वैसे तो 1 घंटा 20 मिनट में मैं लोकेशन पर पहुंच जाऊंगी and then I'm gonna show you guys कि वर्णन में हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं. So just stopped for a bit क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ. इवन तो सिर्फ 4.5 घंटे की ड्राइव है बट मुझे बिल्कुल आदत नहीं रही कि मैं इतनी लंबी ड्राइव कर सकूँ. So I've just stopped at Monte Lake. I think so that's how we pronounce it. और बड़ी एक क्वाइट सी जगह थी. यहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं था. So I was like I'm just gonna take a stop. मैं थोड़ा सा चलूँ फिरूँगी, थोड़ा सा enjoy करूँगी क्योंकि I'm very tired. बाकी you guys can see the view. It's not that खास view. मतलब इतना सही नहीं है but like सही है. It's not very extraordinary or something. But yeah. So वहाँ पे जब मैं वॉक करी थी I saw this little छोटी सी लेक ट्रेल थी. वहाँ से मैं नीचे आई and then I led to this like lake access type area which is actually very nice. ऊपर से व्यूज इतने अच्छे लगे थे बट यहाँ के पानी के पास काफ़ी पीसफुल सा लग रहा है और काफ़ी अच्छा है. So it's a very good spot अगर for resting. Yes, it's very good. And let's go ahead. So let's get back on the route. और जो मेरी मॉर्निंग थी ना काफ़ी अपसेट सी थी because I ordered a mic and वो माइक चला नहीं मेरे फ़ोन के साथ. That's why इतनी आप लोगों को आवाज़ें भी आ रही होंगी बैकग्राउंड में. But I will be reaching Kelowna और मैं वहाँ ट्राई करूँगी कि मैं कोई या तो मुझे कोई माइक मिल जाए ताकि वीडियो की जो ऑडियो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी आ सके. राइट बिकॉज आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आप लोगों को जिनको नहीं पता मैंने 3 साल की गैप ली थी कॉन्टेंट क्रिएशन से और आई एम फाइनली बैक. बिकॉज गैप बहुत ज़रूरी थी बिकॉज कैनेडा आने के बाद काफ़ी स्ट्रगलिंग सा टाइम रहा. मेंटली भी स्ट्रगलिंग था, फिजिकली भी स्ट्रगलिंग था. हेल्थ कंसर्न्स थोड़े बहुत हो गए, थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट नहीं कर पाई इनिशियली फॉरेन से. बट नाउ आई एम फाइनली बैक ऑन समथिंग दैट आई यूज्ड टू लव डूइंग and I hope I can continue with this. And yeah, if you guys do like this vlog, don't forget to don't forget to subscribe, like and share as much as you guys can. And of course let's see आगे के ये 3 दिन कैसे रहते हैं. ये जो 3 दिन है ना specifically because it's my birthday on 8th of August and I decided कि इन 3 दिन मुझे अपने लिए कुछ करना है. Right, I want to do something for myself. That's why I'm going on a solo trip and I'm going to do everything that was on my bucket list for a while जो कि मैं कर नहीं सकी. Not everything I'll be able to do but कुछ ना कुछ जो मुझे लगता है कि after reaching the age of 27 बहुत सी चीज़ें मैं कर नहीं पाई हूँ, मुझे वो करनी है. So I'll just try to do a little by little जो चीज़ें मुझे खुश कर सकती हैं and I will try कि ये ट्रिप मेरे लिए हो पर्सनली फॉर माई सेल्फ अवेयरनेस, फॉर माई ग्रोथ. जब आप अकेले ट्रैवल करते हो आप बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखते भी हो और देखते भी हो ऑफ कोर्स एंड यू टेंड टू ग्रो. मतलब आप इंटरनली बहुत ग्रो करते हो मुझे लगता है. सो लेट्स सी व्हाट दिस ट्रिप गेट्स मी और क्या क्या चीज़ें मैं अचीव कर सकती हूँ. बट यू गाइज आर गोना एंजॉय दिस विद मी. सो या सो फाइनली आई हैव रीच्ड माय होटल. अब बस चेक इन करेंगे. आई डोंट हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द होटल बिकॉज ये लास्ट रिजॉर्ट था मेरे लिए. बट लेट्स सी कि होटल कैसा है, आप लोगों को भी दिखाऊंगी. और बस अभी चेक इन करती हूँ. बहुत ज़्यादा धूप बढ़ी, पता नहीं बहुत तीखी धूप है आज. सो बस चेक इन करती हूँ और रेस्ट करती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि कहाँ जाना है.
सो इट्स दिव्या सूत्रा होटल जो कि मैंने बुक कराया है, और इसके साथ इट वाज अ वेरी गुड डील. आई गॉट फॉर. सो फिर मेरे लास्ट रिजॉर्ट यही था. सो दिस इज़ माई होटल रूम. एक्सपेक्टेशंस वाइज वही निकला, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा. क्लीननेस की काफ़ी इश्यूज़ हैं, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट इवन प्रॉपरली क्लीन्ड, बट इट्स ओके. आई एम गोना एटलीस्ट टेल देम टू क्लीन इट. The bed sheets are not even ironed, so I don't know what to expect on an overall thing. I did not like this hotel room, but I'll have to get the work done because ज़्यादा तो मुझे बाहर ही रहना है, but still whatever I was expecting, it's below average to be very honest. अच्छा, वो जो रूम था ना, वो बिल्कुल ही रहने के काबिल नहीं लग रहा था मुझे. सिंक उसका गंदा था, बेड शीट्स उसकी गंदी थी, एंड आई वाज लाइक नो, दिस इज़ नॉट व्हाट आई पेड फॉर, बिकॉज आई पेड अबाउट $450, एंड आई वाज लाइक नहीं, इतना तो मैंने गंदा रूम नहीं बुक किया होगा. आई वेंट टू द रिसेप्शन, आई टॉक्ड विद द गर्ल, एंड आई वाज लाइक नो, मुझे रूम चेंज चाहिए, मैं इतने गंदे रूम में नहीं रह सकती. बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है इसके, वो वहाँ का व्यू भी नहीं अच्छा था. सो व्यू भी इंजॉय कर लेंगे थोड़ा बहुत, बट मेन पर्पसली जो मेन चीज़ थी ना, बेड शीट्स क्लीन है. और अगर आप होटल में आओ ना, पर्सनली मुझे होता है कि बेड शीट्स क्लीन हो, थोड़ा लगे होटल वाली वाइब, सो अब थोड़ी बहुत आ रही है. बट या फाइनली आई वॉज एबल टू गेट अ बेटर रूम, एंड आई होप कि मेरा जो 3 दिन का स्टे है यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहे. बाकी आप लोगों को तो अपडेट मिलती रहेगी. ओके जी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं. उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी एंड एक्सप्लोर करती हूँ कि कोई अच्छी खाने पीने की जगहें मिल जाएँ. थोड़े स्नैक्स और ब्रेकफास्ट आइटम्स जो है वो मैं ला के रख दूँगी रूम में, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्रेकफास्ट तो इंक्लूडेड नहीं है. एंड प्रीटी हैप्पी फॉर दी अपग्रेड ऑफ द रूम, ताकि थोड़ा बेहतर लग रहा है रूम. अब थोड़ा सा लग रहा है कि मैं वेकेशन पे आई हूँ. बट येस, मैं जाऊँगी, मैं एक्सप्लोर करूँगी और आप लोगों को साथ लेकर जाऊँगी. और देखते हैं, वैसे तो 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है, सो बहुत सारी अट्रैक्शन जो है वो तो ख़त्म हो गई होंगी या बंद हो गई होंगी, पर वो डेफिनेटली सी के क्या क्या चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ और मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ. एंड डिनर स्पॉट्स में लेट्स सी, मैं क्योंकि मेरा कंफर्ट फूड तो पाकिस्तानी या इंडियन ही है, पर डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ. तो जब तक मैं उठी तो आई वॉज वेरी टायर्ड, तो मैं थोड़ा ज़्यादा सो गई. तो मैं उठी तो काफ़ी लेट हो चुका था, तो मैंने कहा मैं क्या ही खाऊंगी. सो आई जस्ट ग्रैब सम पिज़्ज़ा फ्रॉम पिज़्ज़ा 64. और अब मैं एक व्यू पॉइंट जा रही हूँ जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. लग तो वो काफ़ी अच्छा रहा है, बट लेट्स गो अप एंड सी, और वहाँ पे हम अपना डिनर एंजॉय करेंगे और फिर हम अपना आज का व्लॉग जो है वो एंड कर देंगे. सो ये कुछ स्टेयर्स हैं, यहाँ से चढ़ेंगे. व्यू पॉइंट मैं आप लोगों को एंड में ही दिखाऊंगी ताकि आप लोग भी इंजॉय करें उसको. सो स्टेयर्स चढ़ते हैं थोड़ी सी, और फिर आपको टॉप पे जाके दिखाती हूँ. और यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखाने आई थी, बट साथ में सच ए क्यूट थिंग, मुझे बहुत सारे डियर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे माउंटेन पे हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड टर्टल माउंटेन व्यू पॉइंट इन वर्नन. गाइस, इट्स सच अ ब्यूटीफुल व्यू. मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे है. मैं वैसे ही सर्च कर रही थी कोई जगह बैठ के खाने के लिए, एंड आई फाउंड दिस. ओह माय गॉड, दिस इज़ ब्रेथ टेकिंग. बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ बैठ के खाने का तो अपना ही मज़ा आएगा. प्लस मुझे तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रही है ना, सॉरी, वो लग रही है इनकी, बहुत ही ज़्यादा. सो अगर आप लोग वर्नन में आ रहे हैं, सो आई वुड से कि ये बहुत ही रिकमेंडेबल स्पॉट है. टर्टल माउंटेन लुकआउट है. जब आप गूगल पे सर्च करोगे आपको तब भी मिल जाएगा. बट वेरी नाइस स्पॉट है. अकेले बैठ के यहाँ पिज़्ज़ा खाने का तो अपना ही मज़ा आएगा. सो आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड करते हैं, और देखते हैं कि अगले जो कुछ दिन हैं सोलो ट्रिप के, वो हमें कहाँ कहाँ लेकर जा सकते हैं और मैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ. बट अभी के लिए मेरी फर्स्ट जो रैंडम स्पॉट था वो काफ़ी अच्छा है. और येस, आई विल सी यू गाइस बैक टुमारो. एंड ये जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो का थम्स अप देते जाएगा, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड इफ यू आर कमिंग टू अ रोड ट्रिप ऑन BC, डोंट फॉरगेट टू विजिट द स्पॉट.